Hello, my dear students. Good afternoon. This is Anurag Kumar Dubey, chemistry teacher from Sugar Singh Children Academy. In previous lecture, we have discussed about Besper theory. Okay, we know very well Besper theory gives geometry of some simple molecules, but theoretically it does not explain them. Okay, or you can say Besper theory unable to explain geometry of polyatomic molecules or bond energy or nature of molecules. Okay, for the explanation of these properties, today we are going to start a new topic. Okay, two important theory. How many? Two important theory which is based on quantum mechanical principle, which is used. Okay, two important theory is VVT. VVT means valence bond theory, and MOT, molecular orbital theory. Okay, so today we will discuss about valence bond theory. This is most important topic. Both are important topic, valence bond theory as well as molecular orbital theory. Okay, so today's your topic is valence bond theory, VVT. Valence bond theory. Okay, in short form VVT. Okay, this theory was proposed by Hitler and London in 1927. Okay, and it was further developed by L. Pauling and J.C. Slater in 1931. Okay, the main postulates of this theory is okay, the main postulates of theory is, first postulate is the covalent bond formed only when two atomic orbitals approach with each other. Okay, and balance and their valence orbitals overlap
with each other. With each other. So what is the first postulates? The covalent bond is formed only when two atomic orbitals approach with each other and their valence orbitals overlap with each other. इसका मतलब क्या हुआ कि कोवैलेंट बॉन्ड तभी पॉसिबल है या तभी बनेगा when two atomic orbitals, suppose that this is one atomic orbital, this is another atomic orbital, so when both atomic orbitals approach with each other, जब एक दूसरे के पास आएंगे और पास आने के बाद क्या होंगे, उनके जो बैलेंस ऑर्बिटल्स हैं, बैलेंस ऑर्बिटल्स ओवरलैप विथ ईच अदर, और एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, तभी क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट H2 molecule. In H2 molecule formed by two hydrogen atom, hydrogen plus hydrogen, और क्या बनेगा, H2 molecule. ओके, तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1. ओके, शेप ऑफ s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल. ओके, देयर इज only one electron. We know very well hydrogen atomic number 1, electronic configuration 1 according to Bohr-Bury rule. This is Abba rule, है ना. तो दिस इज बैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, और हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन दियर बैलेंस शेल, और देयर इज 2 हाइड्रोजन, H2 molecule. दिस इज द एंड अदर shape of hydrogen atom. This is the s orbital, or this is the s orbital of hydrogen atom, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ एटम ऑफ हाइड्रोजन अप्रोच विथ ईच अदर. ओके, इसके पास भी कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, तो फॉर मेकिंग कोवैलेंट बॉन्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ हाइड्रोजन एटम अप्रोच विथ ईच अदर एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप विथ ईच अदर. ओके, पहले पास आएंगे और पास आने के बाद दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे. ये पार्ट किसका है, ओवरलैपिंग का, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पे आ जाएंगे. यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, कोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज द न्यूक्लियस. ओके, और ये हमारा क्या है, H2 molecule. तो समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड. सेकेंड postulates is only half filled orbital can participate. Only half filled orbital can participate in overlapping. Only half filled orbitals can participate in overlapping. For example, say nitrogen atomic number 7, electronic configuration 1s2, 2s2 and 2p3. Okay, 3 to 5, 5 to 7. S is fulfilled and this yes is fulfilled, and P has 3 orbitals और there is 3 electrons. तो according Hund rule, first of all we fill one electron in each orbital. Okay, if one orbital contain 1 electron, that is half filled. So only half filled orbital, not full filled orbital. Only half filled orbitals can participate in overlapping, or you can say only half filled orbitals can participate in the forming of covalent bond. Third postulates the bonding orbital is formed as a result
as a result of overlapping between two orbitals in which probability of finding electron is maximum. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? द बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज फॉर्म. बॉन्डिंग ऑर्बिटल तभी बनेगा, मतलब टू एटम्स के बीच बॉन्ड तभी बनेगा एज अ रिजल्ट ओवरलैपिंग बिटवीन टू ऑर्बिटल्स. ओके, जब ओवरलैप करने वाले दोनों ऑर्बिटल, सपोज दैट ये एक एटम है, ये एक एटम है, और इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल, दोनों का जो ऑर्बिटल है वह कहां पे ओवरलैप करेगा? ठीक है, कहां पर ये ओवरलैप करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे? इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, वहीं पर क्या होगा? व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. कहेंगे द एरिया इन विच probability of finding electron is maximum is called orbital. और we know very well electron present in orbital. okay, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? ऑर्बिटल्स में होते हैं. तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो होंगे वह कहाँ पे ओवरलैप करेंगे? कहाँ पे ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे? जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, वहीं पे ओवरलैप करके ये क्या करेंगे? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे. ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट या फोर्थ पोस्टुलेट्स, कहिए द बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन extent overlapping between orbital. okay, the bond strength depends upon extent overlapping between orbitals. मतलब जो बॉन्ड की ताकत है, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, वह किस पर डिपेंड करती है? एक्सटेंट ओवरलैपिंग. इफ देयर इज अ एक्सटेंट ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स, अगर टू एटम्स के बिटवीन मैक्सिमम ओवरलैपिंग होता है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग, जैसे ये दोनों हाथ है, सपोज दैट बोथ आर एटम्स, अगर इतना ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैपिंग क्या होगी? पार्शियल होगी. अगर ऐसे ओवरलैप करेंगे, ऐसे, तो ओवरलैपिंग कैसा होगा? एक्सटेंट होगा और बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा. इफ देयर इज अ ग्रेटर और एक्सटेंट ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स, ओके, सो बॉन्ड्स will be greater या so bonds will be stronger. बॉन्ड कैसा होगा? हमारा स्ट्रॉन्गर होगा. इफ देयर इज अ पार्शियल ओवरलैपिंग नॉट एक्सटेंट ओवरलैपिंग, सो बॉन्ड विल बी वीकर. बॉन्ड कैसा हो जाएगा? हमारा कमजोर हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पोस्टुलेट्स. ओके, ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, only valence electron lost their identity, okay, and other electrons remain unchanged या remain unaffected during the formation of bond. और क्या कर सकते हैं? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस्ट देयर आइडेंटिटी. मतलब जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा,
तो हमको पता है क्या कि ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड और ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग। इफ ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, सो ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस देयर आइडेंटिटी। वही सिर्फ अपनी पहचान को क्या करते हैं, खो देते हैं, अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स रिमेन अनचेंज, और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह अनचेंज होते हैं, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके, 6.6 समटाइम्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम absorb energy and excite to higher energy level. Okay, and increase unpaired electron. Okay, sometime balanced electron of an atom absorb energy and excite to higher energy level and increase unpaired electron. For example, carbon atomic number 6, electronic configuration 1s2 2s2, okay, and 2p2. okay, this इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ग्राउंड स्टेट। ओके, यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कार्बन का है वो कैसा है, ग्राउंड स्टेट का है। ओके, सपोज दैट आप कहते हैं कार्बन का अगर बनाएं स्ट्रक्चर, दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो हमने कहा था अकॉर्डिंग टू Niels Bohr atomic model, when definite energy of electron revolve in definite energy level, okay, that state of an atom is called ground state, है ना। बट अगर इसको हम बाहर से एनर्जी क्या करें, प्रोवाइड करें, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को पा करके लोअर एनर्जी लेवल से जंप कर जाते हैं कहाँ पर, हायर एनर्जी लेवल में, जिससे ये अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करते हैं। देखिए इस स्टेट में s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन एंड p सबसेल हैज 3 ऑर्बिटल, देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। दिस इज द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या है, ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। लेकिन जब इसी कार्बन को हम बाहर से एनर्जी देंगे तो ये क्या होगा, एक्साइट होकर के हायर एनर्जी लेवल चला जाएगा। मतलब कार्बन 6 1s2 2s, मतलब लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। 2s की एनर्जी कम होती है कंपैरिजन 2p के। ओके, तो जब एनर्जी देंगे तो 2s का 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए किसमें, 2p में, तो रिमेन इलेक्ट्रॉन इज 1, 2s1 एंड 2p3। तो s ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें s ऑर्बिटल हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड p सबसेल हैज 3 ऑर्बिटल एंड देयर इज 3 इलेक्ट्रॉन। अब चेक करिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स यू कैन से कार्बन अब 4 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, मतलब ग्राउंड स्टेट से कहां पे जाने पर, एक्साइटेड स्टेट में। फॉर एग्जांपल जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस कैन मेक PCl3 compound and also PCl5. In the case of PCl5, number of unpaired electron in phosphorus has 3, or in case of PCl5, phosphorus has 5 unpaired electrons. कितने, 5 unpaired electrons। कैसे, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। जैसे फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p3।
2 2 4 6 10 2 12 3 15। अब चेक करते हैं s ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन and p has 6 electron 1 2 3 4 5 6 and s has 1 orbital 2 electrons and p subshell has 3 orbitals 3 electron according to Hund rule 1 electron. Okay, so there is only 3 unpaired electron, 3 unpaired electron है तो 1 इलेक्ट्रॉन 3 Cl से रिएक्ट करके, मतलब ऐसे p है। ओके, अब बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बैलेंस सेल हमारा यही है, 1 क्या है K सेल, 2s 2p, L सेल, 3s 3p, M सेल बैलेंस सेल, और बैलेंस सेल है 3 to 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5। Cl है हमारा, बैलेंस सेल हैज 7 इलेक्ट्रॉन, हैज 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, 718 718 718 ये हमारा बन गया PCl3। ओके, अगर एक्साइटेड स्टेट में जाए, देखिए 3s 3p 3s 3p, और पता है हमको कि 3d भी क्या होता है, पॉसिबल होता है। 3s 3p एंड 3d इसमें क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, लेकिन जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 1s2 2s2 2p6 3s का इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में जाएगा, 3d में, एक्साइटेड स्टेट में 3s1 3p3 एंड 3d1। ओके, सेम एनर्जी लेवल है। अब देखिए s में यहां तक तो हमारे क्या है, फुल फील्ड, 3s 1 इलेक्ट्रॉन 3p 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3। ओके, और यहाँ पे d सबसेल हैज 5 ऑर्बिटल्स एंड देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब नाउ चेक 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या कर सकता है, 5 है तो Cl के साथ Cl 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 एंड Cl के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, मतलब क्या बना सकता है, PCl5। तो एक्साइटेड स्टेट में PCl5, ग्राउंड स्टेट में PCl3 बनेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंट ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल depends upon extent overlapping between orbitals depends upon nature and type of overlapping। ओके, एक्सटेंट ओवरलैपिंग, जो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होता है किसके, बिटवीन ऑर्बिटल्स के, या मैक्सिमम ओवरलैपिंग के लिए, ठीक है, बिटवीन ऑर्बिटल्स किस पर डिपेंड करता है, नेचर एंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पर, नेचर एंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ओवरलैपिंग कोवैलेंट बॉन्ड is of two types, okay। First, sigma bond, this is most important, sigma bond, okay, on the basis of nature of overlapping, okay, ओवरलैपिंग के नेचर के बेस पर कोवैलेंट बॉन्ड 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, सिग्मा बॉन्ड्स। व्हाट इज द सिग्मा बॉन्ड्स, कहेंगे द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 atomic orbitals by end to end
end to end or head to head overlapping, head to head. The bond is formed as sigma bond. Okay, what is the sigma bond? The bond formed between two atomic orbitals by end to end overlapping or coaxial overlapping. Coaxial end to end overlapping or head to head overlapping, these are same. ठीक है, अगर एटम के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वह एंड टू एंड ओवरलैपिंग के द्वारा बने तो बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड. ओके, एंड सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. तो व्हाट इज द सिग्मा बॉन्ड? द बॉन्ड formed between two atomic orbitals by end to end or head to head overlapping. The bond is formed as sigma bond. Okay, sigma bonds formed by three type of overlapping. Sigma bond formed by three type of overlapping. Okay, first SS overlapping, second SP overlapping and third PP overlapping. Okay, थ्री टाइप से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है या थ्री टाइप्स के ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है. फर्स्ट SS, सेकेंड SP एंड थर्ड PP overlapping. First SS overlapping. Okay, in this type when two half filled s orbital overlap along the internuclear axis. Okay, what is the yes overlapping? In this type, when two half-filled s orbital overlap along the internucleus axis. Okay, for example, for yes overlapping is H2 molecule. Okay, in H2 molecule, hydrogen atomic number 1, electronic configuration 1s1. Okay, there is only one electrons in real valence cell. See the s orbital, है ना? For another hydrogen, same condition, shape is spherical. S orbital of another hydrogen, or this is the s orbital of first hydrogen, first and second, है ना? S and S both are s orbital. और ऑर्बिटल शुड बी हाफ फील्ड. क्या होना चाहिए? हाफ फील्ड. बोथ आर यस एंड एस ऑर्बिटल. तो दोनों क्या करेंगे? पहले पास आएंगे, अप्रोच विथ ईच अदर एंड ओवरलैप विथ ईच अदर. तो हियर इज अ विच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग? एस एस ओवरलैपिंग. ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? एस एस ओवरलैपिंग. S overlapping and formed bond is sigma bond. Okay, we can say that sigma bond formed by S overlapping between two half-filled s orbital. Okay, second by sp overlapping. Okay,
कहेंगे क्या कि these bonds are formed by end to end overlapping of one s orbital of an atom and one p orbital of another atom. ओके, तो क्या होता है व्हाट इज sp ओवरलैपिंग? These bonds are sigma bonds are formed by end-to-end overlapping of one s orbital of an atom and one p orbital of an other atom. For example of sp type overlapping, example HCl or HF, hydrogen fluoride or hydrogen chloride. HCl, hydrogen atomic number 1, electronic configuration 1s1, shape spherical s का, and that is there is one electron. This is the half filled. Okay, and plus Cl atomic number 17, 1s2, 2s2 and 2p6 and 3s2 and 3p5. Only balanced electron can participate in the formation of bond. तो यहाँ तक तो फुलफिल 3p5 को ही चेक करना हमको. तो 3p5 है, तो p subshell has 3 orbital. There is a 5 electron according to whom rule? 1 electron remaining electron paired from first orbital. अब you can see first 2 orbitals of p subshell is fulfilled and last orbital is half filled. और we know very well px, py and pz. और p subshell का शेप कैसा होता है? डम्बल shapes, और there is only 1 electron. This is also half filled. This is the s orbital of hydrogen, or this is the p orbital of chlorine atom, है ना? And type of overlapping sp overlapping, है ना? तो ये इसका क्या है? एंड पॉइंट, और ये इसका क्या है? एंड पॉइंट. मतलब ओवरलैपिंग कैसी होगी? एंड टू एंड. यह भी ओवरलैपिंग कैसा है? एस एस में एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट. तो ओवरलैपिंग कैसे हुआ था? एंड टू एंड ओवरलैपिंग, जिसको हम क्या कहते थे? एस एस ओवरलैपिंग. इसका ये एंड है और इसका ये एंड है. ठीक है, तो ये ओवरलैप करेंगे तो कैसे बनेगा? ऐसे. ये न्यूक्लियस और ये ओवरलैपिंग कैसा है? हेड टू हेड आर इनटू एंड ओवरलैपिंग. और दोनों इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे? इस पोजीशन पे. ओके, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड. ओके, ये क्या होगा? मॉलिक्यूल इज HCl, है ना? तो सिग्मा बॉन्ड आल्सो फॉर्म बाय sp overlapping and ss overlapping. Okay. pp overlapping by pp overlapping. These bonds are formed by end to end overlapping between 2p orbital of 2 atom. For example, Cl2 molecule. तो Cl atomic number 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5.
5. Fulfilled p subshell has 3 orbitals. There is a 5 electron, 1 2 3 4 5. The fulfilled, we know very well full-filled orbitals cannot participate in the formation of bond. Only half-filled orbitals, मतलब px, py and pz. Okay, तो shape of p orbital is dumbbell. कैसा है ये? p orbital of Cl atom और there is 1 electron. Another orbital, there is a Cl2. For another orbital same condition, ये भी क्या है? p orbital of Cl atom. There is also 1 electron. This is the end, or this is the end site of p orbital or chlorine atom. अब ओवरलैपिंग हुआ तो which type of overlapping? p ओवरलैपिंग. और ओवरलैपिंग हुआ कैसे? ये 1 इलेक्ट्रॉन और इसका एंड और इसका एंड दोनों ओवरलैप करेंगे, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ये ठीक है. फॉर्म बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड एंड ओवरलैपिंग p टाइप ओवरलैपिंग एंड मॉलिक्यूल इज Cl2 मॉलिक्यूल. ओके, देखिए एंड टू एंड मतलब क्या, ऐसे 2 राड है, एक राड का एंड मोड़ दीजिए और दूसरे का राड का एंड मोड़ दीजिए, दोनों को एंड टू एंड ऐसे फंसाइए और उसको खींचिए तो वो कभी ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं. वाई? बिकॉज एक्सटेंट ओवरलैपिंग है ना, और एक्सटेंट ओवरलैपिंग ऑलवेज फॉर्म बाय एंड टू एंड ओवरलैपिंग. ओके, अब मान लीजिए सपोज दैट 2 रॉड है जो साइड टू साइड है. अब उनको साइड टू साइड अगर हम ओवरलैप करेंगे तो देयर इज अ पार्शियल ओवरलैपिंग. वहाँ पर ओवरलैपिंग कैसा होगा? पार्शियली कम ओवरलैपिंग होगी. तो कौन सा बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड होगा. तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड बिकॉज in case of sigma bond extent overlapping and in case of pi bond is partial overlapping. So we can say sigma bond is stronger than pi bond.